So, Bismillahirrahmanirrahim. Today's session is about blockchain fundamentals. You must have heard about blockchain and various applications of blockchain. स्पेशली आजकल जो डिस्कशन चल रही है एनएफटीज की और मेटा की और मेटावर्सेस जो और भी हैं, सो इस वजह से बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा उभर के सामने आई है। आप जब भी इन चीज़ों की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी वॉज द स्टार्टिंग एप्लीकेशन, और फिर इसके साथ एनएफटीज और डिजिटल एसेट्स और जो मेटावर्स की हमने बात की, तो इन सब टेक्नोलॉजीज के बेस पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है. दैट इज बेसिकली द इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दीज एप्लीकेशंस. So in today's session we will try to briefly look at the basic concepts, how a blockchain works, first of all what a blockchain is, and then how it works and the main concepts behind it. So आज के lecture का जो content है, first of all we will look at some definitions and why we need blockchain. Okay. Let me get the pointer really quick. ये तो चलो. Okay, so why do we need blockchain? A brief history of ledgers or bookkeeping. Then we will look at a few scenarios and the issues in those scenarios which can be tackled by employing blockchain into those use cases. तो उसमें जो पहली चीज हम देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम एंड पोटेंशियल फ्रॉड्स, इश्यूज इन सप्लाई चेन एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. इसी तरह से ट्रस्ट मॉडल्स, और इसमें एक चीज शायद मैंने कंटेंट्स में लिखना, अच्छा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. सो दैट इज बेसिकली द थर्ड यूज केस. कुछ ट्रस्ट की बात करेंगे. जब भी ऑनलाइन, जब भी एप्लीकेशंस की, जब बिजनेसेस इंटरेक्शन की बात होती है, खास तौर पे ओवर द इंटरनेट, देन trust is involved. Who you trust, whom you cannot trust, what can go wrong if you do business over the internet. So basically that would be our path to building the need for blockchain implementations. So then we'll discuss how blockchain implements that trust model. We'll look at brief history of blockchain and then the basic concepts that basically constitute the blockchain. तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है. आई एम श्योर आप लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा. हम आज उसके सिर्फ एक छोटे से पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि why it is so secure. And then we will be looking at hashing, which is another core component of blockchain technology. Some discussion about Merkle trees. आप लोगों ने trees वैसे पढ़ी हैं अब डेटा स्ट्रक्चर्स में. दिस इज समथिंग लाइक योर बाइनरी ट्री, लेकिन ये ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन में यूटिलाइज होता है टू मेक द ऑपरेशंस अ बिट, you can say, efficient. Okay, so a little bit about Merkle tree, and finally we'll come to the process of mining. Why would someone want to take all that hard work? Why would I want my PC or my specialized CPUs to work for the consistency of a general network? तो उस चीज को हम फिर डिस्कस करेंगे, और माइनिंग डिस्कस करते हुए तकरीबन हम पूरा ब्लॉकचेन की जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माइनिंग इज समथिंग रेलेवेंट टू इंसेंटिव्स. आपको कुछ रिवार्ड मिलता है. तो बेसिकली हम
थोड़ा बहुत बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, हाउ इट implements proof of work और the incentives process। तो उसमें फिर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो आगे हम इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे माइनिंग को, लेकिन through the rest of the topics we will be talking about mining. So we will be looking at blockchain and digital currency issues and solutions, the need for a distributed ledger, consensus mechanism. We'll briefly talk about it because consensus mechanism itself is a very large topic, and there are several algorithms for maintaining consensus in a distributed network. But we'll be looking at a very simplified version of a consensus algorithm, and we'll talk about proof of work and incentives, and that's when we will be actually discussing mining in Bitcoin blockchain. स्टार्ट में आपको पहले से मैं एक चीज बता दूं, बिटकॉइन, इथीरियम एंड अदर, दोज आर जस्ट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द कोर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। आप इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो उसके कोर कॉन्सेप्ट है उनको कहा जाएगा। डिजिटल करेंसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए आप उनको यूज करते हैं तो वो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी आप कहलाएंगे, जिस तरह बिटकॉइन है। हमारे यहां लोग बिटकॉइन को ही ब्लॉकचेन कंसिडर करते हैं बिकॉज दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। दैट वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड ब्लॉकचेन टू द वर्ल्ड। हालांकि ब्लॉकचेन रिलेटेड या जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो हैं वो बहुत पुरानी चीजें हैं, और हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देख भी लेंगे इसके कि ये कॉन्सेप्ट्स, इवन ये जो माइनिंग या प्रूफ ऑफ वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अगेन नॉट समथिंग वेरी न्यू, और ये भी पहले से पब्लिश्ड स्टडीज में इनका जिक्र हुआ है। और जो जितनी भी ब्लॉकचेन की इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है वो पुरानी है, लेकिन जिस वक्त वो प्रेजेंट हुई थी शायद उस वक्त वो एनवायरनमेंट फीजिबल नहीं था एक वायबल ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन के लिए। हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी, हमारे नेटवर्क्स इतने कैपेबल नहीं थे, हमारे हार्डवेयर इतने कैपेबल नहीं थे शायद, तो इनकी फीजिबिलिटी उस तरह से उस वक्त में इंप्लीमेंट नहीं की जा सकी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा, जब हम ये बेसिक पढ़ चुके होंगे तो हमें ब्लॉकचेन की कोर टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। देन वी विल बी डिस्कसिंग हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू यू गाइज, व्हाई आर वी स्टडीइंग इट हियर। तो थोड़ा सा वो देखेंगे। ब्लॉकचेन बेस्ड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन से हैं, खासतौर पे जो टॉप 2-3 हैं उनको ब्रीफली देखेंगे, और साथ में व्हाट could be a basic roadmap for a new developer if somebody wants to become a blockchain developer। तो आपको एक थोड़ा सा उसके बारे में मैंने गाइडलाइन देनी है। ठीक है, सो दिस वुड बी द कंटेंट। आई एम श्योर आप लोग कंटेंट देख के घबराइए नहीं, ये ज्यादा चीजें लग रही हैं, बट वी विल ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड कवर इट एज क्विकली एज पॉसिबल। सो let's start with a complex definition of blockchain. A blockchain is basically a linked list. Linked list, I'm sure you all know what a linked list is. It is basically a chain of data items in which one item is connected to another item. ठीक है, अगर हम blockchain को as a linked list रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन आएगी। दिस इज अ आइटम ऑफ डेटा, ठीक है, एंड वी हैव some connection or some way to connect it to another data item. The data may be different and we somehow are able to connect it, and then another data item and so on. ठीक है, so this is a linked list, general linked list, and data can be anything, but
The linked list that we have implemented in data structures, that were those linked lists were based on a single computer. There was no distribution in it. ऐसा नहीं था कि हमारा एक डेटा आइटम इस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है और दूसरा डेटा आइटम किसी और कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है और डेटा कहीं और से आ रहा है. It was not distributed. You can always make it distributed, of course, if you have the appropriate technologies. So the second attribute would be, okay, so it's a linked list. It is replicated. So multiple copies are maintained. It's distributed. Its consistency is maintained via consensus. अभी consensus क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे. Cryptographically linked. हमने यहां पे इसको कैसे लिंक किया था? This was linked via pointers, क्योंकि ये एक ही कंप्यूटर पे सारा कुछ पड़ा हुआ था. सो हमारे पास एक ही मेमोरी एरिया था. हम एक आइटम या एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेते थे और वो दूसरे ऑब्जेक्ट में एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते थे, एंड दैट वाज आवर लिंक between two data items. Now, if systems, there are a lot of systems and multiple systems have multiple data items. How are you going to connect it? You cannot initialize a pointer from one computer to another computer. So there must be some alternative way, and that is basically where the hashing would come. ठीक है? So hash का concept यहाँ पे utilize होगा. Cryptographically linking data and cryptographically assured integrity of data. तो हमारे पास दोनों काम क्रिप्टोग्राफी से हो जाएंगे. I'm sure आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा if you don't know about blockchain कि ये क्या है, replicated, distributed, consistency maintained, consensus वगैरह वगैरह. So that's why I said that this is a complex definition of blockchain. So we'll try to understand each and everything, and then hopefully you will know कि इसका क्या मतलब है. So such a complex blockchain can be used as immutable ledger of events, transactions और टाइम स्टैम्प डेटा. ठीक है, हर किस्म का डेटा. अब यहां पे कहीं पे नहीं लिखा कि it will only be currency related data. So it can be information about events that we keep a record of. It can be transactions of currency or some other business model, and it may be timestamp data from some random IoT device. Okay, so anything can be stored. And immutable ledger mean once something is written to this record, this database, nobody will be able to change it. Okay, so it is tamper resistant. You see, I'm not saying that it is tamper proof. There is a possibility to change, but if you look at the real life scenario, statistically it will be impossible to change it. So that's why it can be changed, but it's not feasible to do it in real time. Platform to create and transact in cryptocurrencies and log of events, transactions unrelated to currency. So that's why we see the boom in utilization of blockchain technologies, क्योंकि ये this is not just about cryptocurrencies anymore. ठीक है, और आगे जाके हम फिर देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये बिटकॉइन वाज ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज. अगर आप ये बिटकॉइन के बेसिक्स को देखेंगे, उसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे, तो वहां पे आपको और एप्लीकेशन में उसको यूटिलाइज करने में मुश्किल पेश आएगी. बट since that was the beginning of the technology, then came another version and another version and another version, and they made it feasible for people to utilize blockchain technologies for other purposes. Okay? So ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है. अब जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, सो वो ऑलरेडी we know why the technology is being so praised and why it is being
given so much attention. सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसीज की वजह से, बिटकॉइन एंड इथेरियम, एंड देन people started using it for e-governance applications to make data secure, to make government related let's say documentation safe and secure, immutable. Similarly for block supply chain management and energy management and a lot of other fields. इनमें से कुछ जो यूज केसेस हैं वो अभी हम देखेंगे कि उनके इश्यूज क्या हैं एंड हाउ दे कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो जब बंदा इन चीजों को देखता है तो क्वेश्चन जहन में आता है ना, इट इज समथिंग लाइक अ हाइप और इज इट रियल थिंग. सो होपफुली आफ्टर टुडेज सेशन वी विल बी एबल टू डिसाइड फॉर आवरसेल्फ if it is just the hype created by the media around these technologies. Different experts have their own opinion regarding the viability of these technologies for various applications. But once you know the basic concepts and the technologies, you might be able to decide for yourself if it is going to be a big thing in future or not. Okay, so first thing first, let's look at some bookkeeping history. कैसे लोग रिकॉर्ड रखते थे? तो in prehistoric times, it all started just by counting things. Like this guy over here, he's counting his sheep. ठीक है? तो काउंटिंग में मसला क्या था? आप एक दफा काउंट करते हैं, it's all in your memory and you can easily forget it. तो लोगों ने कहा कि नहीं, this is not a good way to do it. So they started tying knots on ropes. Let's say if in the second picture, ठीक है, this guy is tying knots. वो एक रस्सी है, उसमें गिरे बांधता है ना, कि रात को सोते वक्त वो अपने शीप्स जब काउंट करता था तो उतने गिरे वो बांध देता था कि इस वक्त 10 शीप्स हैं तो वो 10 गिरे उसमें बांध के रख लेता था, और सुबह जब आता था तो इवन अगर उसके जहन में कुछ ना भी हो तो वो उन गिरों को देख के काउंट कर लेता था. That was one of the technique used in prehistoric times. Then people learned to write and draw things, and they started drawing it on. So that was basically the first utilization of let's say the first implementation of bookkeeping. Ledgers में record maintain करना, ठीक है? And then came the techniques then evolved over time, and we got to the scenario where banks are now maintaining our records, especially for our monetary data. So हमारा centralized banking system में क्या था? Actually we are going towards why blockchain was introduced. तो इन सिनेरियोज को देखना लाजमी है, ठीक है? So centralized banking में क्या है? One customer wants to lend, let's say 10 rupees or yuan or dollars to another person, and both have their accounts in the bank. तो ये कहता है कि मैं कस्टमर बी को 10 रुपए या $10 ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो वो बैंक को बताता है, ठीक है? और बैंक क्या करता है? उसके अकाउंट में चेक करता है कि इसमें पहले $10 मौजूद है भी कि नहीं मौजूद, और फिर वो उससे $10 डिड्यूस करता है और अगले बंदे के अकाउंट में $10 ऐड कर देता है, ठीक है? दिस इज एंड द रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड. इसका एक दिस इज कॉल्ड वन ट्रांजैक्शन. कस्टमर ए ने कस्टमर बी को 10 रुपए या $10 दे दिए हैं, ठीक है? और दोनों के अकाउंट्स को भी अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है? अब इसमें मसला क्या आ सकता है? इसमें कई सारे मसले आ सकते हैं और रियल लाइफ में लोग इसको फेस करते भी हैं, ठीक है? सो ये तो हो गया कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस इस तरह से मेंटेन होती हैं कि आपके बैलेंस में से ट्रांजैक्शन अमाउंट काट दी जाती है और अगले के अकाउंट में वो ऐड कर दी जाती है,
ठीक है. You can also check your transactions online and check the monthly statements as well. Those are basically generated by your bank. ठीक है. So ये रिकॉर्ड मेंटेन कौन करता है? Since this is a centralized entity, the central bank, they are basically doing everything. So if they want to change something, maybe you are unable to detect it as well. Okay, so what if the bank allows an invalid transaction to go through? आपने $10 की ट्रांजैक्शन का कहा था, उसने लेट्स से $11 का कर दिया या $100 का कर दिया, और स्पेशली अगर बैंक इन्वॉल्व है, सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट टू देम? ठीक है. अगर आपके $10 के चेक बुक में लेट्स से कोई बैंक का एम्प्लॉय खुद से एक 0 ऐड कर देता है, ठीक है, सो हाउ आर यू गोइंग टू रिपुडिएट इट विद? ठीक है, कौन आपका मुकदमा सुनेगा? ठीक है. Although there are various agencies like in Pakistan, there is State Bank of Pakistan, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं और बैंक जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड. अच्छा, स्पेशली जब आपके बैंक का लेट से एम्प्लॉई अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहेगा, तो उसके साथ फिर उसको प्रूफ देना कि नहीं, मैंने ये कहा था और आपने उसको गलत ट्रांजैक्शन इनपुट किया है, दैट वुड बी अ वेरी हार्ड थिंग टू प्रूव. सो यहां पे जो पोटेंशियल बैंक फ्रॉड्स हैं उसमें समवन कैन फोर्ज योर चेक और योर सिग्नेचर, maybe add an extra zero to the आपके जो लेट्स से OTPs वगैरह आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, इवन इजी पैसा में कितने किस्म के स्कैम्स आप लोग देख रहे हैं. इजी पैसा इज अगेन अ सेंट्रलाइज्ड सर्विस. आपके जो मुख्तलिफ किस्म के वॉलेट्स हैं वो सारे सेंट्रल एक एंटिटी के पास पड़े हुए हैं. हमारे बैंक की इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई दराज पे दराज यूज कर रहे हैं और आप उसके लिए अपने कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो क्या करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दराज को देते हैं, एंड इट शुड बी अ रिलायबल इनफ एंटिटी कि वो आपके उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना करें. आपके CNIC का सारा डेटा, बल्कि आपकी CNIC जो नादरा ऑर्गेनाइजेशन है उनके डेटाबेस में आप हम में से हर एक बंदे की पूरी फैमिली ट्री उधर पड़ी हुई है. ऐसा ही है ना. इफ समबडी वांट्स टू चेंज समथिंग in the Nadra organization, if somebody wants to change something in our record, we may not be able to notice it even. Okay? So this is the main concern about centralized entity, centralized systems. उसमें आप जो है आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आपने मेरी ट्रांजैक्शन को गलत कर दिया है या the amount was modified, और इवन अगर आपको कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो एक मशहूर हैकर पकड़ा गया था, and he collected a lot of money from large banks. उसका तरीकाकार क्या था कि उसने जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनमें कुछ मिलियनियर्स के अकाउंट्स को उसने टारगेट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी डे ही वुड समहाउ एक्सट्रैक्ट $1 or a portion of $1 from each account. तो अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं बैंक अकाउंट में और उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, मिलियंस आते हैं, मिलियंस जाते हैं, या थाउजेंड्स आते हैं और थाउजेंड्स जाते हैं, तो उसमें अगर डेली $1 कम या ज्यादा होता है, कौन नोटिस करता है? सो दिस वाज द वे ही हैड accumulated like millions, and he was I think a Palestinian or something. और उसने वो सारे पैसे जो हैं बाद में फिर पता चला कि he utilized all that money for Palestinian cause. Anyways, he was arrested and I don't know what happened to him after that. लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके कितने लोगों के अकाउंट्स हैं बैंक में,
कितने लोगों के अकाउंट्स हैं? हाउ ऑफन डू यू चेक योर बैंक स्टेटमेंट्स? मतलब मंथली मेरे पास आता है ईमेल में, लेकिन कौन चेक करता है? एंड स्पेशली when you perform transactions regularly, तो हम एटीएम जाते हैं, वहां से 10,000 20,000 निकालते हैं और स्टेटमेंट कोई देखता भी नहीं है, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे काट रहे होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन पे आपसे पैसे काटते हैं, कभी 20 रुपए कट जाते हैं, कभी 20 रुपए कट जाते हैं, बट नोबडी नोटिस दोज अमाउंट्स। ठीक है, तो अगर ये लार्जर स्केल पे किया जाए, इट कैन सम अप टू अ क्वांटिफाइबल अमाउंट। ठीक है, तो दीज आर दी फ्लॉज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम्स। ये हमने बैंकिंग सिस्टम का डिस्कस किया। सप्लाई चेन में प्रोवेनेंस, जो हिस्ट्री है प्रोडक्ट्स की, जो ओरिजिन है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है या सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं भी है। इमेजिन दिस सिनेरियो, देयर इज दिस फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस आइसक्रीम। ठीक है, इट प्रोड्यूस आइसक्रीम, इसके पास अपना स्टोरेज है, ये आइसक्रीम बनाते हैं, स्टोर रखते हैं, और फिर इस तरह के सप्लाई, एक और कंपनी है जो सप्लायर के तौर पे काम करता है और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को आइसक्रीम प्रोवाइड करता है। सपोज यू ओन दिस रेस्टोरेंट ए, एंड दिस सप्लायर बी supplies you with ice cream, and for a couple of times you are noticing that the ice cream that you are being supplied, when you receive it, it is already in melting state. अब आप किसके साथ आर्गू करेंगे? लेट्स से जो आपका इमीडिएट कॉन्टेक्ट है वो तो सप्लायर है ना, सप्लायर भी, तो आप उससे कंप्लेन करेंगे कि यार आइसक्रीम जो आ रही है वो मेल्टेड होती है, आई एम अनएबल टू यूज इट, क्योंकि वो खराब हो चुकी होती है। सो वो कहता है कि नहीं, मेरी तो गलती नहीं है, मुझे तो कंपनी से या फैक्ट्री से जैसे ही मिलते हैं मैं फौरन आपके पास पहुंचा देता हूं और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माई सर्विस। अच्छा, आप कहते हैं अच्छा चलो सी से पूछते हैं, फैक्ट्री से पूछते हैं कि यार क्या वजह है कि आप लोग आपका प्रोसेस में कुछ मसला आ गया है, आप सही तरह से आइसक्रीम नहीं बना पा रहे हैं, या फिर आपके स्टोरेज में कोई मसला है, हमें तो आइसक्रीम। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो स्टोरेज भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और हमारी प्रोसेस तो बड़ा ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है, हम तो एक्सीलेंट आइसक्रीम बनाते हैं, एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द सप्लायर इन एक्सीलेंट फॉर्म, इट फुली फ्रोजन। तो अब इस सिनेरियो में आप किसके साथ झगड़ा करेंगे और किसको कसूरवार ठहराएंगे? बिकॉज नोबडी इज टेकिंग द ब्लेम। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन में होता रहता है और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। दराज से आप लोगों का कोई पार्सल आता है, ठीक है, पार्सल में कोई फ्रेजाइल चीज थी और ये अक्सर होता है, बीच में कहीं उसमें डैमेज आ गया है। ठीक है, तो आप सेलर से कांटेक्ट करते हैं, सेलर कहता है मैंने तो बिल्कुल ठीक चीज भिजवाई थी, ये तो इन्होंने किया होगा। वो आप टीसीएस वालों से तो कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले पैसे लेके तब आपको पार्सल लेते हैं। फिर अगर आप रिटर्न के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर आपको और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, सो सप्लाई चेन में हमेशा ये इश्यूज आते रहते हैं और हर किस्म के सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में ये पोटेंशियल हैजर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो सारा किस्सा मैंने आपको सुना दिया कि क्या होगा। व्हाट इज द सोल्यूशन? तो सॉल्यूशंस के बारे में फिर बात करेंगे। द थर्ड सिनेरियो दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज लैंड रजिस्ट्री। यू परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, जिस बंदे से आपने खरीदा था उसने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए और आपने उसको पैसे दे भी दिए, और कुछ अरसे बाद एक थर्ड पार्टी आती है और कहती है कि दिस प्लॉट बिलोंग्स टू मी और मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तुम्हारे पास हैं वो तो फोर्ज हैं।
हालांकि जब जब आप वो प्लॉट परचेज कर रहे थे, आपको जो ओनर ने, जो फर्स्ट ओनर था, जिसने आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आप गए, आपने लैंड रजिस्ट्री सर्विस के साथ उसको वेरीफाई किया और वहां पे कोई क्लर्क बैठा था, उसने कहा हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो अगर इस, हाँ ये ठीक है, अगर इसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है, तो बाद में आप आएंगे लैंड रजिस्ट्री वालों के पास और आप कहेंगे कि यार देखो, अब ये थर्ड पार्टी का बंदा आया है और ये कह रहा है कि ये प्लॉट मेरा है और ये तो मैंने परचेज किया था और आप लोगों ने वेरीफाई किया था। भाई किसने वेरीफाई किया था, कौन था इधर, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने किया था? मतलब इट हैपन्स। इंडियन एक मूवी है खोसला का घोंसला, अगर किसी ने देखी हो, वो स्पेसिफिकली इस चीज पे बनी है। इट्स अ वेरी फनी मूवी, बट दे हैव ट्राइड टू हाईलाइट दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह होता है कि एक बंदा है, वो एक प्लॉट लेता है और बड़ा, वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है और बड़ी मुश्किल से उसने पैसे जमा किए होते हैं और वो एक प्लॉट बड़ा खुश होता है और फिर पता चलता है कि ये तो उसके नाम ही नहीं है, ये तो किसी और का है, एंड देन देयर इज अ स्ट्रगल टू गेट। ठीक है, तो अगर कभी मौका मिले तो देख लें, दैट्स अ वेरी गुड मूवी। एनीवेज, अगेन, इफ नॉट, व्हाट इज द इशू? the system is centralized. बैंक जो आपकी लैंड रजिस्ट्री है, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी। अब वहां पे अगर आपके लैंड रिकॉर्ड में कोई ट्वीकिंग करता है ना, यू मे नो, यू मे नॉट नो, और हमारे यहाँ जो पटवारी सिस्टम है, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली वो इसी वजह से इतना नोटोरियस हो चुका है कि एक तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या है और क्या नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से हार्डली किसी को पता होगा कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं और मरले किस तरह से काउंट किए जाते हैं और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, और खासतौर पे जो उनका तरीकाकार है जिस तरह से हम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आप कह लें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनअवेयरनेस एज वेल, लेकिन जो मेन कॉज है वो सेंट्रलाइजेशन है। एक बंदे के पास अगर पूरे गांव के लैंड का रिकॉर्ड है तो वो तो उसमें कुछ भी कर सकता है ना। ठीक है, सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू ट्रस्ट मॉडल। सेंट्रलाइज्ड एंटिटी को आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स के पिन उसको आप बता रहे हैं, एंड यू आर ट्रस्टिंग देम कि वो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी हम यही काम करते हैं। हमारे हर एक इंडिविजुअल बंदे का बहुत पर्सनल डेटा जो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, गूगल के पास भी पड़ा हुआ है, फेसबुक के पास भी पड़ा हुआ है और बहुत सारे कंपनीज के पास पड़ा हुआ है। और आए दिन हम सुनते हैं कि डेटा लीक हो गया और डेटा लीक हो गया और डेटा चोरी हो गया और डेटा सेल आउट हुआ। ठीक है, हमारा जो आजकल का इंटरनेट का पूरा सिस्टम है वो बेसिकली डेटा की सेल और परचेज पे ही चल रहा है। तो cyber security in such a scenario is very important. Who are you going to trust? Your hardware, your operating systems, the hypervisor or your virtual machines that you are working on. Trust your applications to not be controlled or hijacked or attacked. आपके जो एप्लीकेशंस है, मतलब फेसबुक है या आपका व्हाट्सएप है या कोई और टूल जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेयर इज योर ट्रस्ट एंकर्ड? तो क्योंकि हमारा डेटा इन सारी स्टेप्स में से होके गुजरता है ना, खासतौर पे जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, तो डू यू ट्रस्ट योर बैंक टू नॉट टेक आउट स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम योर बैलेंस, और डू यू ट्रस्ट नादर ऑफिशियल्स टू कीप योर पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? और इस तरह से और बहुत सारी जो हमने सिनेरियोज देखे। Who are basically maintaining, who is ensuring their trust?
So there are always question marks on such systems. Blockchain is all about enabling the trust. ठीक है? Where you are not at the mercy of some trusted third party. एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको एक थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता कि ये मेरे डेटा को सिक्योर करेगा, ये मेरे डेटा का ख्याल रखेगा, बल्कि द सिस्टम इटसेल्फ टेक केयर ऑफ इट्स सिक्योरिटी एंड टेक केयर ऑफ योर डेटा. So blockchain technology is a digital innovation that has the potential to significantly impact trusted computing activities, ठीक है? And therefore cyber security concerns as a whole. तो क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके जो हमने उस इनिशियल कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन में पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग ऑफ डेटा विद डिजिटल सिग्नेचर. सो डिजिटल सिग्नेचर्स आर अनदर फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, टू सिक्योर डेटा एंड टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा. कि मैंने अगर कोई मैसेज सेंड किया है सो यू कैन प्रूव इट टू मी कि हाँ ये तुम्ही ने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा होगा. ठीक है? इसी तरह से इम्यूटेबल, वन समथिंग इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक और द लेजर, nobody can change it. It's infeasible to change it, although it's still possible. Cryptographically secure and provides a basis for trusted computing on top of which applications can be built. तो अगर आपकी कोर टेक्नोलॉजी सिक्योर है, ट्रस्टेड है, ठीक है, सिक्योर है, तो आपके उसके ऊपर जितने भी एप्लीकेशंस बनेंगे that can also ensure these traits. So ये स्टार्ट थोड़ी सी इसी एक स्लाइड में हम जल्दी से ये देख लेते हैं. मैंने आपको बताया था ना कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले से ही इंट्रोड्यूस हुए थे. फॉर एग्जांपल इन 1991 क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड चेन्स ऑफ ब्लॉक इज डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्टुअर्ट हार्बर. 98 कंप्यूटर साइंटिस्ट निक ज़ेबो वर्क ऑन बिटगोल्ड. ये एक किस्म का डिजिटल करेंसी की एक आइडिया था which somehow didn't get successful, but it was a decentralized digital currency. Stephen Pons publishes his theory of cryptographic secure chains plus ideas for implementation, कि कैसे हम एक ऐसे सिस्टम को implement कर सकते हैं. In 2008, developers working under the pseudonym Satoshi Nakamoto released a white paper establishing the model for a blockchain. This was the first paper that got published. और इसी की बेस पे आपका बिटकॉइन बना था. Some people say that Satoshi Nakamoto was an individual, or some say that this was a group of people, और कोई जानता नहीं है कि ये कौन था. ठीक है, अब तक उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो पाई है. ठीक है. In 2009, Nakamoto implements the first blockchain as the public ledger for transaction made using Bitcoin. ठीक है, इनिशियली लोगों ने उसको सीरियस लिया भी नहीं. उसने एज ए प्रोटेस्ट ये सिस्टम लॉन्च किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स. ठीक है. Until 2014, blockchain technology is separated from currency and its potential for other financial inter-organizational transactions is explored and blockchain 2.0 is born. मैंने आपको बताया बिटकॉइन जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन थी वो इसी फोकस के साथ बनाई कि डिजिटल करेंसी होगी और उसकी ट्रांजैक्शंस ये मेंटेन करेगा. लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने फिर रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं यार, सिर्फ करेंसी की ट्रांजैक्शन क्यों, अगर ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है वी शुड ब्रिंग इट टू अदर फील्ड्स एज वेल. और तब 2014 में मुख्तलिफ कंसोर्शियम्स ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर बात करना शुरू की और ब्लॉकचेन 2.0 वाज बॉर्न. फिर इथेरियम सिस्टम इंट्रोड्यूसेस smart contracts. Smart contracts was basically computer programs that can run on your blockchain and act as you can say as a individual entities. तो अभी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल में तो नहीं जाएंगे. बहरहाल these are sorts of programs which run over blockchains. ठीक है.
अच्छा, तो उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। अब तो मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और आगे जाके फिर हम देखेंगे कि जो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्लॉकचेन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है? आप लोग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन से वाकिफ होंगे, ठीक है? उनमें से एक टेक्निक को हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर साथ में हम हैशिंग को भी डिस्कस करेंगे, मर्कल ट्री को, और फिर माइनिंग और नॉन्स जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, आप लोगों को पता है पब्लिक की होती है कस्टमर्स के पास और उसकी एक प्राइवेट की भी होती है। तो नॉर्मल आपको पता है कि क्या होता है। आप अगर कोई मैसेज सिक्योर करना चाहते हैं, साइफर बनाना चाहते हैं, आप अपनी प्राइवेट की, आपकी सिक्योर की, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर ये स्कीम है तो आप जो भी साइफर भिजवाते हैं वो कोई उसको डिक्रिप्टिव नहीं कर पाता। डेट इज स्टेटिस्टिकली इनफीजिबल। वो ये जो यहां पे एग्जांपल है ना, लेट से ये नॉर्मली लार्ज प्राइम नंबर्स होते हैं जो ठीक है, जो आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की जब डिसाइड होती है ना, तो उसके लिए लार्ज प्राइम नंबर्स लाइक 2048 बिट्स मेरे ख्याल में होते हैं, ठीक है, एक नंबर। तो यहां पे तो ये खैर स्मॉलर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की उससे डिराइव होती है। तो ये आप लोग फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो आपकी पब्लिक की बनेगी इन नंबर्स के बेस पे, 11 और 3 जो प्राइम नंबर्स बनेंगे, उससे आपकी जो पब्लिक की बनेगी वो 33 और ये 3 उसका एक्सपोनेंट होगा। इसी तरह से आपकी जो प्राइवेट की होगी वो 33 और 7। तो ये आप अपने पास सिक्योर रखते हैं और ये लोगों को पता होती है, ठीक है। ये टेक्निक हम इस वजह से यहां पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स ब्लॉकचेन की बेस बनाते हैं। दैट्स व्हाट मेक इट सिक्योर अलोंग विद हैशिंग, ठीक है। तो इस सिनेरियो में बॉब वांट्स टू सेंड एलिस द लेटर जी, ये कोई मैसेज है, ठीक है, और इसको आपने किसी इंटीजर में लेट से कन्वर्ट कर दिया एंड द नंबर इज 7, ठीक है। इस 7 को हमने अगर इंक्रिप्ट करना है तो उन कीज के मुताबिक ये फॉर्मूला होगा जो साइफर बनाएगा, ठीक है। सो ये आपकी वो की थी, की कौन सी थी? 7 और जो आपकी प्राइवेट की, प्राइवेट की 7 और 33, ठीक है, 7 और 3 और 33, ठीक है। ये पब्लिक की है, ठीक है, ये पब्लिक की है और इससे आप साइफर बना रहे हैं जो आपने एलिस को सेंड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जब ये वैल्यू, जब इससे साइफर बनता है, ये सारी पूरी उसकी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन फॉलो इट अलोंग। तो आपके पास जो साइफर बनेगा दैट इज 13। इवन फॉर दी स्मॉलर नंबर, अगर आप इसको, क्योंकि आपके पास इक्वेशन गिवन है ना कि इसको कैसे साइफर किया गया था, अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास 7 नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ दी टेक्निक हैज बीन डिजाइंड। आप उससे आसानी से ओरिजिनल टेक्स्ट को वापस जनरेट नहीं कर सकते। इट कैन बी डन बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रायल एंड एरर, ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, ठीक है। जबकि अगर आपके पास दूसरी की मौजूद है, सो यू कैन इजीली विथ सिंपल कैलकुलेशन यू कैन डू दैट। वैल्यू उसने सेंड की होगी, ठीक है, ये तो साइफर बन गया, ये इसने सेंड कर दिया, और यहां पे दूसरा बंदा फिर उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। बॉब एलिस को मैसेज भेजना चाहता है, बॉब के पास एलिस की पब्लिक की मौजूद थी, उसने इसकी पब्लिक की से एक मैसेज को एन्क्रिप्ट किया और वो साइफर उसको भिजवा दिया, ठीक है।
अब चूंकि प्राइवेट की के बगैर वो मैसेज डिक्रिप्ट हो नहीं सकता, और अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच से उसको डिक्रिप्ट करना चाहेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो इट्स नॉट फीजिबल टू डू इट। लेकिन जिस बंदे के पास उस पब्लिक की करिस्पॉन्डिंग प्राइवेट की होगी, तो वो सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू उसको आसानी से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ, यूजिंग दिस इक्वेशन, this is how the message is being decrypted. m equal to 7 mean this was the original message. अगर आप इसकी पैडिंग वगैरह जो भी उसका स्कीम होगा पैडिंग का, you get the original message. ठीक है, सो पब्लिक की प्राइवेट की इंक्रिप्शन में किसी भी बंदे को आप मैसेज भेजना चाहते हैं, उसकी पब्लिक की से आप इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, आप साइफर भिजवा देते हैं, वो अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करता है, क्योंकि उसकी प्राइवेट की सिर्फ उसके पास होती है, सीक्रेट होती है, कोई और उसको किसी और को पता नहीं होता। दिस स्कीम इज यूटिलाइज्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, खास तौर पे जब आपके पास लार्जर प्राइम नंबर्स बेस्ड आपकी जो कीज बनती हैं, पब्लिक और प्राइवेट कीज, तो उन पे जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, अगर आपने किसी साइफर को डिक्रिप्ट करना है, it will take like years and years to achieve the desired results. लेकिन वो अगर आपके पास प्राइवेट की मौजूद है, it can be done very efficiently. तो ये हो गई पब्लिक की प्राइवेट की इंक्रिप्शन। ये उसकी एक सैंपल है, यहां पे जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली प्राइवेट की एंड दिस इज द करेस्पॉन्डिंग पब्लिक की। अब जब आप किसी भी ब्लॉकचेन पे और खास तौर पे परमिशन हो या नॉन परमिशन हो, जिस तरह बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, कोई भी बंदा उसमें अपने वॉलेट्स बना सकता है। जब आप वॉलेट बनाते हैं, वो वॉलेट सॉफ्टवेयर आपको ये एड्रेसेस जनरेट करके दे देता है। ठीक है, और उन एड्रेसेस को आप यूटिलाइज करते हैं टू मेक ट्रांजैक्शंस। ठीक, आपका वॉलेट जो है इट कीप्स योर एड्रेसेस, और क्योंकि वो नॉन परमिशन है, तो आप मल्टीपल एड्रेसेस बना सकते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर्स आप बना सकते हैं। अच्छा, ये स्लाइड आपको शो करने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको इस लेंथ का, ये जो लेंथ ऑफ दी नंबर्स, ये आपको पता चल जाए कि हाउ लार्जर नंबर्स दीज आर। तो इन पे अगर फिर आपको कंप्यूटेशन करनी पड़े, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हैशिंग क्या है? हैश फंक्शन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम which takes an input and it gives you a fixed लेंथ नंबर। ठीक है, तो वो एक डिजिट का नंबर भी हो सकता है, वो 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, वो 8 बिट्स का नंबर हो सकता है, वो 256 बिट्स का नंबर भी हो सकता है। तो लेट्स से जो हमने यहां पे एग्जांपल दी है, दी 256 बिट्स, ये आपका जो वेल नोन SHA-256 सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 256, उससे पहले भी कुछ थे फंक्शंस, जिस तरह MD5 हो गया या SHA-1 हो गया। ठीक है, ये ऐसे हैशिंग फंक्शन थे जो किसी वक्त में बड़े सिक्योर कंसिडर किए जाते थे, और इनको मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टोग्राफी पर्पसेस के लिए यूटिलाइज भी किया जाता था। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, एक जो हम नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर की कोर्स में पढ़ते भी हैं, कि आपके पास लेट से एक हैश फंक्शन है जो आप बना रहे हैं, लेट से, ठीक है, कोई एक हैश फंक्शन, और हम नॉर्मली क्या उसके लिए यूटिलाइज करते हैं, द मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, हम ये यूज करते हैं। लेट से आपके पास एक एरे है 4 एलिमेंट्स की या 6 एलिमेंट्स की या लेट्स से 9 एलिमेंट्स की। ठीक है, और आपके पास इसमें एक लिमिट है। लिमिट क्या है? 0 1 2 3, क्यों राइटिंग नहीं कर रहा?
4 5 6 7, ठीक है। आप एक लार्जर नंबर को एक छोटे नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सही। तो आप क्या करते हैं, उस लार्जर नंबर को आप इस मॉड्यूलो ऑपरेटर से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक छोटी रेंज में एक वैल्यू आ जाएगी। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ हैश फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम कहें कि हमारे हैश फंक्शन में हम डिवाइड करेंगे बाय लेट्स से 10, ठीक है, तो आपके पास जो भी जितना भी बड़ा नंबर होगा, लेट्स से आप 98 है, ठीक है, जब आप इसको मॉड्यूलो 10 करते हैं तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, वो स्मॉलर रेंज में होगी, क्या, 8 इज द रिमाइंडर, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स से 166 है, इसको भी अगर आप मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो फिक्स लेंथ एक नंबर आता है। चूंकि ये एक बड़ा ही सिंपल सा हैश फंक्शन होगा, तो इसमें कोलिजन के चांसेस हैं। इन कोलिजन क्या है कि मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए एक किस्म का नंबर वो जनरेट कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिवाइड लेट्स से 88, so you get again now this is a collision, क्योंकि अगर आप 98 को आपने लेट्स से 8 इंडेक्स पे स्टोर किया है 98 को, ठीक है, तो अब आपके पास 88 के लिए भी वही वैल्यू आई और यू हैव टू ओवरराइट इट, इससे डेटा लॉस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ कोलिजन। जो आपके पास सिक्योर्ड हैश फंक्शन होगा उसमें कोलिजन के चांसेस मिनिमम होंगे, ठीक है। कोलिजन रेजिस्टेंट इसी वजह से हैश फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होती है टर्मिनोलॉजी कि आप उसको कोई सा भी मैसेज दें वो आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके देगा, एंड देयर इज अ वेरी स्मॉलर चांस कि वो दो डिफरेंट मैसेजेस के लिए आपको एक ही नंबर जनरेट करके दे, ठीक है। सो देयर इज a very slight chance near to impossibility कि वो आपको एक नंबर के लिए, और अगर किसी हैश फंक्शन के लिए ऐसी कोई टेक्निक बन जाए, ठीक है, किसी भी हैशिंग फंक्शन के लिए अगर कोई ऐसी टेक्निक डिस्कवर हो जाए कि जिससे उसके कोलिजन्स को एक्सप्लोर किया जा सके, सो दैट हैशिंग फंक्शन इज नो मोर सिक्योर एंड नो मोर यूज्ड। और यही वजह थी कि MD5 और SHA-128 और इस किस्म के जो फंक्शंस हैं, जो हैश फंक्शंस थे, वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं बिकॉज दोज हैव बीन कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। तो हैश फंक्शन क्या होगा, इट टेक्स एन आर्बिट्ररी लेंथ स्ट्रिंग एज इनपुट, प्रोड्यूसेस अ फिक्स साइज आउटपुट, इट्स इजी टू कंप्यूट, जिस तरह हमने किया, ठीक है, कि 98% या मॉड्यूलो 10 इक्वल टू 8, अगर मैं आपको 8 दूं, कैन इमेजिन, हम सपोज करते हैं कि दिस इज अ यूनिक वैल्यू, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस ऑपरेशन से ये 8 आया है। और अगर आप इसको रिवर्स करेंगे भी, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, कौन सा एक्चुअल नंबर कौन सा था, मतलब 98 को हमने मॉड्यूलो किया था ना, और अगर मैं आपको कहूं कि दिस इज द आउटपुट 8, अब इससे फाइंड करो कि ये मैंने किस नंबर को 10 से डिवाइड करके, तो you may not be able to do that effectively because guessing work is involved. So it's almost impossible to reverse. ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, but it will take a lot of time. Security properties, it's collision resistant, तो मैंने आपको collisions के बारे में बता दिया. It hides the original string, almost impossible to get the original string from the output, and it's puzzle friendly. Puzzle friendly, it's something related to the mining operation, ठीक है। तो अभी हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन ये हम बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे कि पजल फ्रेंडलीनेस से क्या मतलब है। जब आप माइनिंग ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम या ज्यादा करते हैं ना, तो ये वहां पे काम आता है, ठीक है। मैं आपको हैश फंक्शन थोड़ा सा दिखाना भी चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप देखें, बल्कि इसके बजाय मैं आपको एक्चुअल
ये एक इम्प्लीमेंटेशन एक बंदे ने की है वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। सो मैं आपको इसके हैश, ये देखें, ये कोई एक ब्लॉक है लेट से नॉन्स, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर, ये आपको नजर नहीं आ रहा? लेट्स सी, एक मिनट, ना ना ठीक है, केबल ठीक है, ये ले गए या नहीं? ओके, ये नजर आ रहा है? पीछे वालों को तो मुश्किल से, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए ना, इधर आ जाए, क्या है इतना दूर क्यों बैठे हैं? अच्छा, अब ये हैश फंक्शन की इंप्लीमेंट है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हम डिस्कस करने लगे हैं, दीज आर बेसिक दी कोर कॉन्सेप्ट्स। सो इमेजिन करें ये आपका कोई सा भी डेटा है एंड दिस इज अ SHA-256 implementation. Even there is no data, still it's generating a unique number. ठीक है, अगर मैं यहां पे कुछ भी लिख दूं, लेट्स से हेलो, इसने, ये मैंने, अच्छा ये हैश, सॉरी ये था हैश का, अच्छा यहां पे ये एक हैश वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर मैंने हेलो लिख दिया तो आप देखें एक 256 बिट का एक नंबर इसने जनरेट कर दिया। अब ये मैसेज कुछ भी मैसेज हो सकता है, इट कैन बी लाइक अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, लेकिन वो इसको फिर भी कन्वर्ट करके अल्टीमेटली आपको एक यूनिक 256 बिट की वैल्यू दे देगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब देखें हेलो है, अगर हेलो के साथ मैं सिर्फ इधर डॉट भी लगा दूं ना, the number changes. The number changes. And every time I give it the same data, मतलब अगर मैं फिर से इसको हेलो कर दूं, तो आप सिर्फ ये लास्ट 4 नंबर जरा याद रखें, 9824, बाकी सेम होगा। फॉर हेलो, मैं हेलो की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये एक नंबर जनरेट हो एंड दिस विल ऑलवेज बी यूनिक फॉर हेलो। जब भी आप 256 बिट हैशिंग फंक्शन को हेलो एज एन इनपुट देंगे, वो आपको ये नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट फंक्शंस, मतलब SHA-256 का अपना एक एल्गोरिथम है 256 बिट नंबर फाइंड करने का, कोई और 256 बिट हैश फंक्शन हो सकता है, उसका अंडरलाइंग एल्गोरिथम कुछ और होगा, तो वो अलग नंबर जनरेट करेगा, ये अलग नंबर जनरेट करेगा। लेकिन as long as you keep the same hashing function, when you give it hello, it will give you this number, ठीक है। और जब मैं इसको आप डॉट मैंने इसके साथ ऐड कर दिया तो एक टोटली डिफरेंट नंबर जनरेट हो गया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन में हमने कहा था कि उसमें टेम्परिंग जो है वो मुश्किल से होती है एंड इट इज इजीली डिटेक्टेबल। हमने कहा ब्लॉकचेन में इट इज टेम्पर रेजिस्टेंट और टेम्पर प्रूफ एक किस्म का कह दें, ठीक है। तो हैश फंक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स से आपने कोई मैसेज लिख दिया कि बॉब गेव ₹10 टू लेट्स से एलिस। अब ये आपका एक ट्रांजैक्शन है ना, कि बॉब ने या किसी एक पब्लिक की ने किसी दूसरी पब्लिक एड्रेस को पे एक अमाउंट ट्रांसफर की, तो आप ये अपने रिकॉर्ड में रखना चाहेंगे ना ये इंफॉर्मेशन, ताकि बाद में इसको वेरीफाई भी किया जा सके। अगर कोई कहे, लेट्स से एलिस कहे कि मुझे तो नहीं मिले, या बॉब कहे कि मैंने किसी को 10 रुपए सेंड नहीं किए, तो और आप वेरीफाई, आप उसको बताना चाहते हैं, आप उसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं एक ट्रांजैक्शन मौजूद है, आप ही की प्राइवेट की से साइन एक मैसेज हमारे पास पड़ा हुआ है,
और क्योंकि आपकी प्राइवेट की सिर्फ आप ही को मालूम है, इस वजह से ये मैसेज आप ही ने सेंड किया होगा। समझ आ रही है? ठीक है, उसका एक हैश हमने निकाल के अपने पास रख लिया। अब एक और ट्रांजैक्शन बनेगा तो ब्लॉकचेन क्या करता है, ये वाला इस ट्रांजैक्शन का जो हैश है ये उठा के अगले ट्रांजैक्शन में रख देता है, उसके साथ अपेंड करके रख देता है। ठीक है, और फिर उसका हैश निकाल के नेक्स्ट ब्लॉक में रख देता है। ये आगे जाके हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल अब अगर एलिस कहे कि नहीं इसने तो मुझे $8 भिजवाए थे और मुझे तो 10 चाहिए, हालांकि एक्चुअली इसको $10 ट्रांसफर हुए, लेकिन एलिस किसी तरह से ये रिकॉर्ड उसको अल्टर करना चाहिए, तो जब वो यहां पे अल्टरेशन करेगी इसका हैश चेंज हो जाएगा। यहां पे तो हैश चेंज हो गया, लेकिन अगले ब्लॉक का हैश कौन चेंज करेगा, और फिर उससे अगले ब्लॉक का हैश कौन चेंज करेगा। सो इस तरह से अगर आप इस छोटी सी चेंज को पूरे चेन में रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, यू विल हैव टू लिटरली रिक्रिएट द होल चेन, व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट्स हाउ द चेन इज सिक्योर्ड, उसमें टेम्परिंग करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आपको हैशिंग में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, आगे जाके हमने वैसे भी ये चीज डिटेल में फिर फर्दर एक्सप्लोर करनी है। तो हैशिंग का काम क्या है, आप इसको जो भी मैसेज देंगे, जो भी डेटा देंगे, एक ट्रांजैक्शन का डेटा है या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस का डेटा है, वो उनको प्रोसेस करके आपको इसका एक यूनिक नंबर, फिक्स्ड लेंथ नंबर आपको दे देगा, एंड देन यू कैन कीप इट सिक्योर और रेप्लिकेट इट so that nobody changes the data of these transactions। ठीक है, पहली बात। वापस जाते हैं ओके, सो हैशिंग इस तरह से रिप्रेजेंट हम करेंगे कि डेटा का हैश जब निकलेगा इट विल गिव अस अ यूनिक नंबर, अ फिक्स्ड लेंथ यूनिक नंबर। और ब्लॉकचेन, अब हम ब्लॉकचेन में ये हैश नंबर कैसे यूटिलाइज होगा, सो वो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि प्रीवियस जितना भी डेटा होता है ब्लॉक, दैट इज जो ब्लॉक चेन का वर्ड है ना, सो इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। जिस तरह हम लिंक लिस्ट में लिस्ट ऑफ आइटम्स, इसी तरह से यहां पे एक आइटम को ब्लॉक आप कंसिडर कर लेना। ब्लॉक कंटेन्स द इंपॉर्टेंट डेटा दैट यू वांट टू कीप इन योर रिकॉर्ड्स। अब वो इन ट्रांजैक्शंस का डेटा हो सकता है कि बॉब ने एलिस को इतने पैसे ट्रांसफर किए, एलिस ने इतने अगले पार्टी को ट्रांसफर किए, एलिस ने उधर से इतने पैसे रिसीव किए, इतने पैसे अपने अकाउंट से निकाल लिए, इतने पैसे जमा कर लिए। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंड ईच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप ब्लॉक में क्या होता है, दिस ट्रांजैक्शन डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक। अब लेट्स से यहां से ये ब्लॉकचेन बनता आ रहा है, ठीक है, तो इससे पहले जो ब्लॉक होगा उसका हैश हम नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर कर लेते हैं। जस्ट लाइक व्हेन वी यूज पॉइंटर्स इन आवर लिंक लिस्ट, एक का एड्रेस हम दूसरे ब्लॉक में उसके नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं, सो इट क्रिएट्स अ लिंक। यहां पे लिंक हैश वैल्यू के थ्रू क्रिएट होता है कि जो भी इस ब्लॉक का डेटा है इसका हैश निकालो, और जो भी इसकी हैश वैल्यू होगी वो अगले ब्लॉक में उसके हेडर में रख दो, ठीक है, उसमें स्टोर कर दो। अब अगर कोई इसके डेटा में टेम्परिंग करेगा ना, तो इसका हैश चेंज होगा और वो इस वैल्यू से डिफरेंट हो जाएगा। सो इट कैन इजीली बी वेरीफाइड कि इसमें टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई। समझ आ रही है? ठीक है, यह सिलसिला इस तरह से चलता जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ इस हैश का पता होना चाहिए। और टू मेक इट इवन मोर एफिशिएंट, फिर हम
मर्कल ट्री फॉर्म में इन हैशेस को अपने पास स्टोर करते हैं, ताकि, क्योंकि अगर देखो एक ही ब्लॉकचेन हर 10 मिनट बाद मेरे ख्याल में एक ब्लॉक बनता है, हर 10 मिनट बाद, ठीक है, एक ब्लॉक बनता है। तो आप इमेजिन करें कितने ब्लॉक्स बनते होंगे। और अगर आप इस तरह बैक ट्रैक करके किसी पुराने ब्लॉक को वेरीफाई करना चाहेंगे, सो इट विल बी अ लीनियर प्रॉब्लम, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो उससे बचने के लिए, टू अवॉइड दैट इनएफिशिएंसी, हम क्या करते हैं कि इन हैशेस को मर्कल ट्री फॉर्म में, मर्कल ट्री इज नथिंग एल्स बट अ बाइनरी सर्च ट्री ऑफ हैशेस। तो आप देखें इधर डेटा है, इसका हैश, समझ आ रही है? तो जिस तरह बाइनरी ट्री में लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होता था, एग्जैक्टली यहां पे भी ये एक बाइनरी ट्री है, इसमें दो सब ट्रीज के हैशेस आप अपने पास स्टोर करते हैं, और फिर उन दोनों हैशेस का हैश निकाल के उसके पेरेंट में, इसी तरह से इन दोनों का हैश निकाल के इसके पास, इसका हैश, और इस तरह से ये हायरार्की बन जाती है। What you need to know is the root hash. ठीक है? एस्टोनिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, उन्होंने बहुत पहले ई गवर्नेंस सर्विसेज इंप्लीमेंट की थी, और ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने अपना ई गवर्नेंस का सेटअप जो है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर लिया। तो वहां पे वीक में एक दफा, वीकली बेसिस पे, वो अपने मर्कल ट्री का जो रूट हैश है, रूट नोड का हैश है, वो न्यूज़पेपर में छापते हैं, ठीक है? सो दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। सो एनी इंफॉर्मेशन विच इज इनसाइड दैट ब्लॉकचेन, कोई भी बंदा उसको किसी भी टाइम पे वेरीफाई कर सकता है, ठीक है? और अगर उसमें कहीं पे भी गवर्नमेंट लेवल पे या पब्लिक लेवल पे कोई भी टेम्परिंग होती है, सो इट कैन इजीली बी ट्रैक्ड। अच्छा, तो कैसे ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है? लिंक लिस्ट के बजाय अगर हम बाइनरी सर्च ट्री यूज कर रहे हैं, तो सर्चिंग कौन से वाले में आसान होगी? बाइनरी सर्च में, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमने कहा था दैट इज द सर्चिंग इज बिग ऑफ एन। आप हेड से स्टार्ट करते हैं और देन आप कंपैरिजन करते 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 अगले ब्लॉक पे, अगले आइटम पे, अगले, अनलेस यू गेट योर डिजायर्ड डेटा। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आप यहां से इसके हैश में फिर सर्च कर सकते हैं कि डेटा जो है वो किस सब ट्री से आ रहा है। सो यू कैन इफेक्टिवली स्किप हाफ ऑफ द ट्री, और इस तरह से आप बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है, बेस 2 लॉगरिथम है, उसमें आप किसी भी आइटम को वेरीफाई कर सकते हैं, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट मेक्स इट एफिशिएंट। आप द ब्लॉकचेन लेट्स से खुद इंप्लीमेंट करेंगे या आप उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, शायद आप मर्कल ट्री को खुद यूटिलाइज ना करें, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन दिस वे, ठीक है? इसको सिर्फ समझना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। So tree holds many items, just need to remember the root hash and can verify membership in log n time per space. जितनी भी उसमें जितनी भी बड़ी ट्री बन जाए उसमें आप log n में आइटम्स। अच्छा, तो हमने डिस्कस कर लिया बेसिक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, हमने देख लिया हैश फंक्शंस क्या होते हैं और उन हैश फंक्शंस को ब्लॉकचेन कैसे यूटिलाइज करता है, और फिर उन हैशेस का रिकॉर्ड वो मर्कल ट्री में कैसे और किस मकसद के लिए सेव करते हैं। नाउ द लास्ट थिंग दैट रिमेन्स इज माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है? लेकिन माइनिंग के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा डिजिटल करेंसी वाले ब्लॉकचेन्स को देख लें कि क्या चीज सेव होती है और किस तरह से सेव होती है। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि हमने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड अपने पास सेव करने हैं, यही हमने करना है ना, ठीक है? ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड सेव करने हैं। तो क्योंकि जब डिजिटल करेंसी की इंप्लीमेंटेशन होगी, सो व्हाट इज डिजिटल करेंसी? अ कॉइन इज बेसिकली अ नंबर, क्लियर है ना?
मतलब व्हाट इज बिटकॉइन? आपके पास कोई एक्चुअल कॉइन होता है? नहीं होता ना. देयर इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ईच कॉइन. तो जो भी डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंट करने वाला बंदा होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो एक नंबर या उसका एक रेंज स्पेसिफाई कर देगा कि हमारे पास जो पॉसिबल कॉइन्स होंगे वो इस रेंज में होंगे और हम वो नंबर जनरेट करेंगे, कोई रेंडमली इनिशियलाइज नंबर. सो यू कैन क्रिएट कॉइन्स एज नंबर्स. ठीक है. अब वो नंबर, वो कॉइन किसका है, ये कैसे वेरीफाई होगा? बाय डिजिटली साइनिंग इट. मतलब अगर मैं अपने प्राइवेट की से कोई मैसेज इनक्रिप्ट कर लूं, कोई नंबर अगर मैं अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दूं, सो माई ओनरशिप कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम दैट कि ये मैंने. हाँ, हाँ, अंग नहीं आई. सो यू हैव अ यूनिक कॉइन आईडी signed by your private key. ठीक है. This is also called digitally signing something. And this is the core concept कि आप ओनरशिप, ब्लॉकचेन में आप डिजिटल एसेट्स का ओनरशिप कैसे इंश्योर कराएंगे. सो दैट इज थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स. ठीक है. अच्छा, कॉइन बन गया, ओनरशिप में आपके आ गया. ठीक है. व्हेन यू साइंड इट. और अब ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आप फिर जाहिर सी बात है उस डिजिटली साइन डिजिटल कॉइन को आप किसी और को भिजवा भी सकते हैं. ऐसे ही होता है ना कि अगर मैंने ट्रांजैक्शन करनी है ऑनलाइन, डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन करनी है, तो होगा क्या कि ये कॉइन में इस जो 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 एक नंबर है जिसको मैंने अपने प्राइवेट की से साइन भी किया हुआ है, वो मैं किसी और को भिजवा सकता हूं. ठीक है. सो दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड कि फलाना कॉइन मुझसे किसी और बंदे के एड्रेस पे ट्रांसफर हो गया. अब इस ट्रांजैक्शन का हैश जो है वो निकाल के तो वो भी साथ में सेव कर दिया जाता है उस ट्रांजैक्शन के साथ, ताकि फिर अगर यहां पे कोई टेम्परिंग हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके. ठीक है. सो योर फ्रेंड्स ओन इट नाउ. कैसे? जब आप अपना यूनिक कॉइन अपने दोस्त को ट्रांसफर करते हैं, सो आप उसकी पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करते हैं. ठीक है. और वो फिर वहां पे उसको रिसीव करता है बाय डिक्रिप्टिंग इट दैट नंबर विथ. ये जेनेरिक में एक बात कह रहा हूं, जिस तरह हम नॉर्मल मैसेज भिजवाते हैं ना, तो अगर मैं आपको मैसेज भिजवा रहा हूं, आई शुड हैव योर पब्लिक की, मैं आपकी पब्लिक की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करूंगा, आपको भिजवाऊंगा और आप अपनी प्राइवेट की से फिर उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं. ठीक है. इस तरह से होगा. और ये जनरल जो पुराने डिजिटल करेंसी सिस्टम्स थे ना, उनमें यही वो यूटिलाइज कर रहे थे. बट व्हाट वाज द इशू? अगर ये इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड कहीं पे स्टोर की जा रही है, देन अगेन देयर वुड बी प्रॉब्लम्स विद इट. उसको टेम्पर किया जा सकता है. ठीक है. ये जो सारी डिस्कशन अभी हम आगे करते जा रहे हैं, वी आर बेसिकली बिल्डिंग आवर डिस्कशन टूवर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जरूरत क्यों है. ठीक है. तो ये इस तरह से अगर वो किसी और को फिर भिजवाता है तो ये सारे प्रोसीजर वो भी फॉलो करेंगे. ठीक है. इसमें जो डिजिटल करेंसीज में सबसे बड़ा इशू था वो डबल स्पेंडिंग का था. क्योंकि देखो, अगर मेरे पास 100 का नोट है, ठीक है, तो वो मैं इस बंदे को अगर दे दूं तो बस मेरे हाथ से वो चला गया.
अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं वो 100 रुपए का नोट इसको भी दे दूं और उसको भी दे दूं, और मैं दोनों से कहूं कि मैंने तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दिए हैं या मैंने तुमको इतने इतने पैसे दे दिए हैं। मैं साइमल्टेनियसली दो बंदों के साथ ये काम नहीं कर सकता। वेल, डिजिटल करेंसी में दिट इज पॉसिबल, क्योंकि वहां पे नोट क्या है, इट्स जस्ट अ नंबर साइंड बाय मी। तो वो मैं अगर इसको सेंड कर सकता हूं तो इसको सेंड नहीं कर सकता, या उसको सेंड नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम, कि मैं एक ही कॉइन को दो बंदों को सेंड कर दूं सेम अमाउंट। इसको प्रिवेंट करना है किसी तरीके से, ठीक है। सो डबल स्पेंडिंग को कैसे फिर ये यहां पे शोन है कि जो मेरे पास एक कॉइन था, वो मैंने एक फ्रेंड को भी भिजवा दिया और दूसरे फ्रेंड को भी ट्रांसफर कर दिया। दैट वाज द मेन इशू इन डिजिटल करेंसी, जो कि बिटकॉइन से पहले के डिजिटल करेंसी जो सिस्टम ट्राई किए गए थे ना, उनमें ये इशू था। और उसको रिजॉल्व कैसे किया गया है ब्लॉकचेन में, कि एक तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेंटेन की जाती है ना, लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो बोथ ट्रांजैक्शंस विल बी सेव्ड, तो उसमें टेम्परिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर मैंने अपना कॉइन ए को भी भिजवा दिया और बी को भी भिजवा दिया, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। एंड इफ देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई कि ये डबल स्पेंडिंग हो रही है, तो both the transaction would become a normal part of your blockchain and the system would go on, किसी को पता नहीं चलेगा unless and until के कोई स्पेसिफिकली उन नंबर्स को मैच करके देख ले कि यार ये तो सेम कॉइन है, ये भी उस पर परचेस कर रहा है और ये भी उस पर परचेस कर रहा है। जैसे लेट्स से अगर मैंने एक नोट की कॉपी बना दी तो उसका भी नंबर और दूसरे नोट का अगर नंबर सेम हो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल और फेक वाली बात हो जाएगी। सो बिटकॉइन क्या करता है, जिस तरह आप नए कॉइन्स क्रिएट करते हैं ना, तो जब आप सेंड करते हैं किसी को वो कॉइन, तो डबल स्पेंडिंग से बचने के लिए वो क्या करता है, उस कॉइन को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो कॉइन डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो आपको रिसीव होता है दैट इज अ न्यू कॉइन इज क्रिएटेड। मतलब वो जो नंबर था ना ओरिजिनल, बस वो खत्म हो गया। ये ऐसे है कि मेरे पास नोट है, तो मैंने अगर इसको दे दिया तो बस मेरे हाथ से तो चला गया। और अगर हम किसी जमाने में अगर ऐसे नोट्स बना सकें कि जो मेरे पास उसका नंबर था, लेट्स से अगर दिस इज जस्ट अ वाइल्ड आइडिया, कि मैंने अगर नोट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, इफ इट इज इन माई हैंड, तो लेट्स से मेरे फिंगरप्रिंट से वो एक यूनिक नंबर जनरेट कर रहा है, सो इट शोज दैट दिस इज माई नोट। लेकिन अगर मैं एक प्रोसेस के थ्रू किसी और बंदे के हवाले कर दूं तो उसके हाथ में आते ही वो नंबर चेंज हो जाए। ना इट इज हिज नोट, लेकिन मेरे हाथ से बस वो चला गया है। सो बिटकॉइन डज द सेम। अगर मैं एक कॉइन अपने अकाउंट से दूसरे को ट्रांसफर करता हूं तो वो ये नहीं करता कि ये वाला नंबर उधर भिजवा देता है, बल्कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले के अकाउंट में एक नया कॉइन जनरेट करके उसके अकाउंट में ऐड कर देता है। ठीक है, दिस इज हाउ डबल स्पेंडिंग इज प्रिवेंटेड। अच्छा, ये सारी उसी की बातें हैं, कंज्यूम्स एंड डिस्ट्रॉयज। The overall amount of Bitcoin should remain the same unless the system generates more coin. और आपको पता है there are only 21 million Bitcoin possible in the world. ठीक है,
21 मिलियन बिटकॉइंस ही बन सकते हैं, जो कि अब तो मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन इधर है या ये मैंने किसी और लेक्चर में ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर की थी। 2024 तक वो सारे बिटकॉइंस बन जाएंगे, उसके बाद नए बिटकॉइन नहीं बनेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई बंदा करेंसी सिस्टम बनाता है तो वो उस वक्त डिसाइड कर लेता है। सतोशी नाकामोटो ने जब ओरिजिनली बिटकॉइन इंप्लीमेंट किया था तो शायद उसको पता नहीं था कि ये आगे जाके इसमें कितनी बिजनेसेस और कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उसने जो ओरिजिनल लिमिट लगाई थी दैट इज 21 मिलियन। और ये टाइम के साथ नए नए कॉइन्स बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं ये भी आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो बाय 2040 ऑल द 21 मिलियन बिटकॉइंस वुड हैव बीन क्रिएटेड। उसके बाद नए कॉइन्स क्रिएट नहीं होंगे। ये चीज जहन में रखें, इसको थोड़ा सा आगे जाके फिर दोबारा इसकी तरफ आते हैं कि अगर नए कॉइन्स नहीं बन रहे हैं तो लोग इसमें पैसे कैसे कमाएंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। कॉइन्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अगर कॉइन आपके पास है तो उसमें आप टेम्परिंग नहीं कर सकते। ठीक है। हु कीप्स ट्रैक, अब वो सेंट्रलाइजेशन वाली बात आ गई। ट्रांजैक्शंस तो चलो रिकॉर्ड हो रहे, लेकिन कौन उसको वेरीफाई कौन करेगा, रिकॉर्ड किसके पास पड़ा होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा वो जो प्रीवियस हमने एक दो सिनेरियोज देखे थे, थोड़ा सा उनकी तरफ चलते हैं। आइसक्रीम वाली सिनेरियो में एक तो ये था, ओरिजिनल मसला ये था कि रिपुडिएशन, नॉन रिपुडिएशन हो रही थी, कोई मान नहीं रहा कि भाई मेरी गलती है। ठीक है, सो द सोल्यूशन इज कि भाई हम जो है सेंसर्स इंस्टॉल कर लेते हैं। सप्लायर की वैन में भी सेंसर इंस्टॉल कर रहे हैं टेम्परेचर, ताकि वो भी हमें हर 10 सेकंड के बाद उसके कोल्ड स्टोरेज के टेम्परेचर बताता रहे। फैक्ट्री के में भी मुख्तलिफ प्रोसेसेस में हम सेंसिंग सिस्टम लगवा देते हैं ताकि उनका भी डेटा लॉग होता रहे। ठीक है, और हम जो है उससे फिर पता लगा सकेंगे कि किसकी गलती है। अगेन, वेयर दिस डेटा विल बी स्टोर्ड, किसी सेंट्रल सर्वर पे वो डेटा आएगा ना, वहां से आप उसको एक्सेस करेंगे। कहीं क्लाउड पे पड़ा होगा, वहां से आप एक्सेस करेंगे इस आईओटी डेटा को। इज इट सिक्योर? इट कैन बी टेम्पर्ड। सप्लायर भी उसको चेंज कर सकता है, फैक्ट्री वाले भी उसको चेंज कर सकते हैं। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे होते हैं अक्सर, तो कोई बंदा होता है बड़ा एक्सपर्ट किस्म का, वो उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है, और वो जो कैमरा एक खास जगह पे उसमें प्रीवियस कोई वीडियो रीप्ले कर देता है। ठीक है, तो जो वीडियो फीड जा रही होती है वो पुराने टाइम की, दिस इज कॉल्ड रीप्ले अटैक। मतलब जिस वक्त हमारा कोल्ड स्टोरेज सही काम कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर सेंसर कुछ डेटा जनरेट कर रहा हो, अगर हमारे पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो जब हमारा कोल्ड स्टोरेज खराब हो गया और मैं कहूँ कि नहीं आप पिछले हफ्ते वाला डेटा जो है वो उसकी स्ट्रीम चालू कर दो सेंसर के बजाय, तो किसको पता चलेगा? लोग कहेंगे कि सेंसर डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो रीप्ले हो रहा होगा। तो रीप्ले अटैक्स हो सकते हैं, टेम्परिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वन थिंग इज टू, ये सारी उसकी डिटेल है। डेटा इंटीग्रिटी आप वेरीफाई करेंगे तो उसमें रीप्ले अटैक्स का खतरा हो सकता है। व्हाट द सर्विस गेट रिपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री सी मे बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सप्लायर बी, मतलब ये आपस एक दूसरे के डेटा को टेम्पर कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, the crux of the discussion is कि जब भी सेंट्रलाइजेशन होगी तो उसमें there is a chance of tampering. ठीक है, so what can be done? Use a message integrity proof. एक तो आप ये कर सकते हैं, हैशिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछली डिस्कशन में देखा। ऑथेंटिसिटी और नॉन रिपुडिएशन को आप सिग्नेचर्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैंपिंग यूटिलाइज करते हुए आप जो है रीप्ले अटैक से बच सकते हैं। अगेन, ये सारी टेक्निक्स तो हमने कहा ना कि ब्लॉकचेन में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन इटसेल्फ कहां पड़ा होगा? अगर वो किसी सेंट्रल सर्वर पे या किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है, दे थर्ड पार्टी कैन ऑलवेज टेम्पर विद इट। ठीक है, द सोल्यूशन इज, ये फिर कंकरेंसी के इशू भी इसमें आएंगे अगर हम इस किस्म के सोल्यूशंस यूटिलाइज करेंगे। द सोल्यूशन इज, थर्ड
party? No, third party is not the solution because they can always tamper with the data. So we need to create a framework on which data is crowdsourced, validated by the crowd for the crowd. उसको मेंटेन भी क्राउड करे, जो यूजर्स हैं वो उसको मेंटेन करे, वो उसको वेरीफाई करे, ठीक है। और एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज रेप्लिकेटेड। तो मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपके पास भी है, वो इसके पास भी है, और ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में इस तरह होता है। उसके अपने इश्यूज हैं। उसके अपने इश्यूज क्या हैं? अगर मैं यहां पे डेटा में चेंज करूं, वो चेंज उधर कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो उधर कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो उधर कैसे रिफ्लेक्ट होगा, और इसको वेरीफाई कौन करेगा कि मैंने जो चेंज किया है वो एक वैलिड चेंज है भी या नहीं है। सो टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दैट we need a distributed consensus mechanism and that is the consensus algorithm, जो कि तकरीबन तमाम ब्लॉकचेन्स में मुख्तलिफ किस्म के consensus algorithms implemented हैं, ठीक है। एंड दे मेक श्योर कि किस तरह से जो इनकमिंग डेटा है, नए मैसेजेस हैं, नए ट्रांजैक्शन है, उनको ऑर्डर कैसे किया जाएगा, कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई गलत ट्रांजैक्शन तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहे। एंड फॉर दैट द मेन कंसेंसस स्कीम इज कॉल्ड बाइजेट एंड फॉल्ट टॉलरेंस। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि वो क्या है। इट्स बेसिकली अ वोटिंग बेस्ड एल्गोरिथम के जब ज्यादा लोग कहेंगे कि दिस इज वैलिड ट्रांजैक्शन सो एवरीवन विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, टू मेक इट वेरी सिंपल। अच्छा, तो हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में ऑल पार्टिसिपेंट इन द ब्लॉकचेन हैव ए कॉपी ऑफ इट, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अगर लेट्स से 3 ब्लॉक्स मेरे पास पड़े हुए, वही 3 ब्लॉक्स इसके पास पड़े हुए, वही 3 ब्लॉक्स आपके पास भी पड़े हुए, कहीं से मेरे जहन में बात आ जाती है कि क्यों ना इस ब्लॉक को मैं चेंज कर दूं, तो मैं इधर तो चेंज कर लूंगा, ठीक है, लेकिन आपके ब्लॉक को कैसे मैं, आपके ब्लॉकचेन को कैसे मैं चेंज करूंगा, या उसके ब्लॉकचेन को मैं कैसे, अगर 2 बंदों का कंसेंसस आ रहा है कि नहीं दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, तो मेरा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। बट फॉर दैट वी नीड दिस कंसेंसस एल्गोरिथम, ठीक है, कि ये कैसे इंश्योर किया जाएगा। हर चेंज जो ब्लॉकचेन में आएगा वो तमाम नोड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एलिस वांट टू सेंड बॉब ₹10 और $10, ये ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो ब्लॉकचेन में जितने भी एक्टिव नोड्स होंगे सबको ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब ये किसी ने मैलिशियसली जनरेट किया होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हर नोड जो है वो इंडिविजुअली उसके सिग्नेचर्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है, वो जो हैशिंग और पब्लिक की और प्राइवेट की से जो उसकी इंक्रिप्शन, उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये वाकई में ये वैलिड ट्रांजैक्शन है हर बंदा। तो अगर जो साइजेबल नंबर ऑफ नोड्स इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि दिस इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन, तो वो उसको एक ब्लॉक का हिस्सा बनाएगा, फिर ये बंदा भी ब्लॉक बनाएगा, वो भी ब्लॉक बनाएगा, वो भी ब्लॉक बनाएगा। हो सकता है इसके पास जो ट्रांजैक्शंस आए थे वो डिफरेंट ऑर्डर में हो, इसके पास जो ट्रांजैक्शन आए थे वो डिफरेंट ऑर्डर में हो, या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो, तो किस बंदे का ब्लॉक जो है वो एक्चुअल ब्लॉकचेन का हिस्सा बनेगा, ये भी कंसेंसस एल्गोरिथम के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। सो अब तक हमने जो ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर देखा वो क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उन सब पे उस ब्लॉकचेन की कॉपी पड़ी हुई है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उन तमाम को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद वो फिर अपने अपने ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि हर बंदा अपना ब्लॉक बना रहा है तो उनमें से कोई एक बंदा सेलेक्ट होगा और उसका ब्लॉक फिर जब वो सेलेक्ट हो जाएगा कि अच्छा ये ब्लॉक जो है ये नेक्स्ट एंट्री होगी ब्लॉकचेन में,
तो फिर मैं भी उसको एज इट इज अपनी ब्लॉकचेन की कॉपी का हिस्सा बनाऊंगा, ये भी बनाएगा, वो भी बनाएगा, और जितने भी नोड्स हैं इस तरह से ओवरऑल ब्लॉकचेन जो है वो तमाम नोड्स पे कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? अब ये सिलेक्शन होगी किस तरह और ये इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कोई करेगा कि मेरे पास भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, अब मेरे पास अपना पीसी है, मैं अपनी बिजली खर्च कर रहा हूं, why should I be wasting my resources for verifying your transaction or his transactions? ठीक है, तो अब आगे फिर हम बात करेंगे। ये तो कंसेंसस एल्गोरिथम का जो अभी मैंने आपको बताया। न्यू ट्रांजैक्शन आर ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स, ईच नोड कलेक्ट्स न्यू ट्रांजैक्शन इनटू ब्लॉक्स। ठीक है, ईच राउंड अ रैंडम नोड गेट्स टू ब्रॉडकास्ट इट्स ब्लॉक, कि जो भी बंदा सेलेक्ट हो गया कि अच्छा इसका ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, तो वो अपना ब्लॉक सब नोड्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है एंड दे कनेक्ट इट इनटू देयर ब्लॉकचेन कॉपी। Other nodes accept the block only if all transaction in it are valid. समझ आ रही है बात की? अगर उनमें से एक भी ट्रांजैक्शन जो उसने ब्लॉक बनाया है उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगे, अगर उनमें से एक भी ट्रांजैक्शन इनवैलिड आता है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर का इशू है या उसमें कहीं पे प्रीवियस टेम्परिंग की कोई बात आ रही है, सो दैट ब्लॉक विल बी रिजेक्टेड अनलेस एंड अनटिल more than 51% of the more than 50% of the nodes agree कि ये वैलिड ब्लॉक है, तब तक कोई ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, and this is the one concern, this is called sybil attack। आज लोग इसके बारे में कंसर्न है कि अगर ब्लॉकचेन में 51% नोड जो है अगर वो मैलिशियस हो जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर 51% नोड जो हैं वो इस बात की गवाही दे दें कि ये गलत ट्रांजैक्शन जो है ये सही है, तो बस ये तो हमारा मेन एक वो क्या है, फायरवॉल है ना, कि 50 से ज्यादा लोग अगर या पार्टिसिपेंट अगर किसी चीज को वोट दे दें तो हम उसको वैलिड कंसिडर करेंगे। और इसी वजह से लोग डर भी रहे हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर माइनिंग ऑपरेशन जो है वो चाइना में हो रहे हैं और वहीं पे ज्यादा नोड्स हैं, तो लोग और खास तौर पे यूएस इस पे बड़ा कंसर्न थी किसी वक्त में। अब तो खैर वो थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया है कि ऐसा वक्त जल्दी आ जाएगा कि मोर देन 51% नोड सारे चाइना के पास होंगे। और चाइना ने एक इस किस्म का इनिशिएटिव स्टार्ट भी किया था कि जो मेजर माइनिंग कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट के अंदर लेके आ जाए, किसी तरीके से गवर्नमेंट के उस इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आ जाए। तो इफ समथिंग हैपेंस लाइक दैट तो बस फिर उनकी मर्जी होगी, वो जो भी वो सारा का सारा बिटकॉइन जो है वो किसी एक बंदे के नाम कर सकते हैं। एनीवेज, इट इज स्टैटिस्टिकली नॉट पॉसिबल टिल नाउ। ठीक है, और उसके बाद उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, ये हम डिस्कस कर लेते लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम उतनी डेप्थ में जाएं। सो कंसेंसस एल्गोरिथम, नोड एक्सप्रेस देयर एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्लॉक बाय इंक्लूडिंग इट्स हैश। नए ब्लॉक को कैसे हम ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाएंगे, उसके हैश को हमने अगले ब्लॉक का हिस्सा बनाना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, जो वैलिड ब्लॉक होगा, लास्ट वैलिड ब्लॉक, उसका हैश निकाल के हमने नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड करना होगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू ऐड न्यू ब्लॉक। अच्छा, अब वो जो हार्ड वर्क और उसकी बात आ रही थी ना कि मैं क्यों अपने पैसे जाया करूं किसी और के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए, तो दिस इज बेसिकली, और फिर अगर हर बंदा इतने सारे ब्लॉक्स जनरेट करेगा तो इट्स लाइक वेस्टेज, और उसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसको सेलेक्ट किया जाए। तो देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, क्रिएटर ऑफ ब्लॉक गेट्स टू इंक्लूड स्पेशल कॉइन क्रिएशन ट्रांजैक्शन। जब भी आप सेलेक्ट होते हैं कि आपका ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में नेक्स्ट अपेंड होगा, तो आपको एक स्पेशल परमिशन मिल जाती है कि आप एक खास अमाउंट ऑफ ब्लॉकचेन बिटकॉइंस क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ बिटकॉइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे ब्लॉकचेन्स भी हैं जिनमें ये इंसेंटिव बेस्ड ऑपरेशन नहीं होते। ठीक है, उसमें
दूसरे मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन ब्लॉकचेन बिटकॉइन में क्या होता है, जब आप माइनिंग करते हैं, दिस इज बेसिकली माइनिंग, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं और जब आप ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, तो आप और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक रिवार्ड में कुछ बिटकॉइंस मिल जाते हैं। तो पहले वो बहुत ज्यादा होते थे, फिर वो वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में 12.5 था, अब वो शायद 6.25 पे आ गया है आजकल। तो और ये 210,000 ब्लॉक्स के बाद जो है वो हाफ होता जा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई सेड, एंड दिस इज द ओनली मैकेनिज्म थ्रू व्हिच न्यू बिटकॉइंस आर बीइंग क्रिएटेड। लोग माइनिंग करते हैं, वो जो सेलेक्ट होते हैं उनको नए बिटकॉइंस बनाने का मौका दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, द नंबर ऑफ न्यू बिटकॉइन क्रिएट। सो बाय 2040, ठीक है, हर 4 साल के बाद ये रेट हाफ होता जा रहा है, ठीक है। सो माइनिंग के इंसेंटिव को कम किया जा रहा है और एक वक्त आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। देन देयर वुड बी सम अल्टरनेटिव, क्योंकि फिर लोग क्यों माइनिंग करेंगे, उसके लिए वो टेक्निक सबको प्रपोज है, फिर उनको यूटिलाइज किया जाएगा। ये काम बिटकॉइन में भी हो रहा है, ये इथीरियम में भी हो रहा है। बिटकॉइन्स तो बीटीसी है और इथीरियम में उसको जो उनकी सब डिविजन्स हैं गैस के फॉर्म में उसको पे किया जाता है, ठीक है। एनीवेज अभी हम बिटकॉइन इथीरियम की डिस्कशन में नहीं जाते। ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट। दिस इज टू curtail misuse of things। अगर आप अपनी मर्जी से ब्लॉक्स बनाते रहें, ठीक है, तो मैं तो एक मतलब पीसीज है ना, और लोगों के पास बड़े पावरफुल पीसीज हैं, तो लोग दिन में लाखों हजारों करोड़ों ब्लॉक्स बनाते रहेंगे और इस तरह से वो ब्रॉडकास्ट करेंगे और एक कंजेशन क्रिएट हो जाएगी, जो आपका नेटवर्क है वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। So what they did is they incorporated proof of work. And again, this is not something new. It was originally proposed in 1997 to curtail the problem of spam emails. कि आप किसी भी सर्वर से जब आप कोई ईमेल जनरेट करते हैं तो स्पैम ईमेल क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक ईमेल को मिलियन कॉपीज उसकी ब्रॉडकास्ट करते हैं लोगों को। दैट इज हाउ स्पैम वर्क। तो उन्होंने कहा इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, किस तरह से इस ऑपरेशन को डिस्करेज किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई सर्वर एक ईमेल सेंड करेगा, ठीक है, या कोई एक कंप्यूटर जब एक ईमेल सेंड करेगा तो उसको लेट्स से 2 सेकेंड्स की या 3 सेकेंड्स की एक कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके उसका कोई एक नंबर उसको कैलकुलेट करना होगा, जो कि एक ईमेल के लिए वो 2 सेकंड में या 3 सेकंड में कर लेगा, ठीक है। सो इट्स नथिंग नोटिसेबल। आप ईमेल सेंड करते हैं, आपका प्रोसेसर 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए बिजी हो जाता है और एक नंबर जनरेट हो जाता है। जब वो वेरीफाई हो जाता है तो आपका ईमेल सेंड हो जाता है। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन इट्स नथिंग नोटिसेबल। इमेजिन करें जब आप मिलियंस ऑफ ईमेल सेंड करना चाहेंगे, सो मिलियंस मल्टीप्लाइड बाय 3, इतने सेकेंड्स के लिए आपका प्रोसेसर बिजी होगा तब जाके आप, सो इट्स बेसिकली मेक इट इम्पॉसिबल टू सेंड दोज मिलियंस ऑफ स्पैम ईमेल्स। एंड दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड प्रूफ ऑफ वर्क। बिटकॉइन ने भी इस चीज को यूटिलाइज किया है कि यार जो बंदा कहेगा कि मैंने ब्लॉक बनाया है, उसको पहले कुछ वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि यार मैंने कुछ वाकई में काम किया है, इसके पीछे से नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ब्लॉक्स बना के तो भिजवा रहा हूं, ठीक है, उस कंजेशन से बचने के लिए। तो क्या करते हैं कि नया ब्लॉक जब बनता है तो उसमें ओरिजिनली होता क्या है, आपके पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है ब्लॉक में, ठीक है, नए जो भी ट्रांजैक्शंस आए होते हैं, ठीक है, उनका हैश होता है, उनके हैशेस होते हैं नए ट्रांजैक्शंस के, और टाइम स्टैम्प का डेटा होता है, और एक
नॉन्स कहलाता है। दिस इज एन अननोन वैल्यू, एक नंबर आपने ऐड करना होगा, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू गेस, यू हैव टू कैलकुलेट। और ये आप रेंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो थ्रू ट्रायल एंड एरर। वन ट्राई करेंगे, और वो कैसे कि जो नेटवर्क है उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी होती है। ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द लीडिंग जीरोज। जो इसका हैश बनेगा ना इस पूरे ब्लॉक का, ऊपर जो है ये सारा इसका हैश बनेगा। हर टाइम पे बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, जो जहां से उसकी पॉलिसीज बनती हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगला जो हैश बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज होने चाहिए। ठीक है, तो लीडिंग जीरोज आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको लीडिंग जीरोज अगर मैं कहूं कि 0 0 1 1 1 0 1 1 ये नंबर, और 0 0 0 0 1 1 1 1, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा नंबर है और ये वाला छोटा नंबर है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये वैल्यू पहले आएगी, ये वैल्यू बड़ी बाद में आएगी। इस तरह है ना। द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज बेसिकली स्पेसिफाइज द कंप्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशंस, और वो ब्लॉकचेन का नेटवर्क इस बात को एडवर्टाइज करता है, एंड इट सेट्स द डिफिकल्टी ऑफ द न्यू फाइंडिंग द न्यू ब्लॉक। तो ये हैश, जब आप इसमें लीडिंग जीरोस 4 है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वो कैसे? आप ये नॉन्स चेंज करते रहेंगे, ये कोई रैंडम वैल्यू होगी। हैश तो सबके पास एक आएगा ना, ऊपर का जो डेटा है ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। आपके लिए एक ब्लॉक के लिए ये कांस्टेंट होगा, इसका जो भी हैश आएगा वो तो कोई एक वैल्यू होगी, तो आप उसमें ये नंबर चेंज करते हैं, ये नॉन्स जो है ये चेंज करते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल माइनिंग। आप 1 पे ट्राई करते हैं और आप देखते हैं कि ये जो इसका हैश बन रहा है, क्या उसमें 4 लीडिंग जीरोज हैं कि नहीं है। फिर आप 2 के साथ उसको ट्राई करते हैं, फिर हैश कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें लीडिंग 4 जीरोज हैं कि नहीं है। और इस तरह से ये आप ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। ये बार बार करते हैं, और अल्टीमेटली आपको किसी एक नॉन्स वैल्यू पे आपको एक हैश आउटपुट मिल जाएगा जिसमें लीडिंग जीरोस 4 होंगे। इस बात की समझ आ रही है यहां से? जब आप कुछ भी डेटा हैश फंक्शन से गुजारते हैं, उसकी एक यूनिक हैश बनता है ना। आपने ऐसा हैश फाइंड करना है जिसमें लीडिंग जीरोस इस केस में 4 हो। जब कंप्लेक्सिटी कम करनी हो तो बिटकॉइन नेटवर्क एडवर्टाइज करता है कि नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर देता है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे ना, ठीक है। जो नंबर आपने फाइंड करना होगा वो छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस बढ़ेंगे, बाकी नंबर छोटा हो जाएगा। और जब ज्यादा लोग माइनिंग करने लगते हैं तो वो उसकी नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस को कम कर देता है, ताकि कंप्लेक्सिटीज, और ये इस वजह से कि वो नए ब्लॉक बनने के रेट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। जितनी ज्यादा कंप्लेक्सिटी होगी उतनी देर से नया ब्लॉक बनेगा, ठीक है। और जितने लोग कम होते हैं, जिस वक्त माइनिंग कम होने लगती है, तो वो डिफिकल्टी को कम कर लेते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस, और आपको नॉन्स फाइंड करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का हम कम करते हैं ना। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला नंबर जो है इसको आप गेस करें, तो इसमें कितनी किधर है, ये वाला जो नंबर है, अगर इसमें आपको पॉसिबल कोई एक वैल्यू गेस करनी पड़ जाए, तो इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशंस होंगे या इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशंस होंगे?
ऊपर वाले में ज्यादा कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, नीचे वाले में कम कॉम्बिनेशंस ट्राई करनी पड़ेंगी, एंड दिस इज व्हाट स्पेसिफाइज। अब इसको करने के लिए आपको पर सेकेंड्स बहुत सारे हैशेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और उनमें से साइमल्टेनियसली ये भी शायद विद लीडिंग 4 लीडिंग जीरोस ये भी हैश कैलकुलेट कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। तो हर बंदा का मैंने नया ब्लॉक बना दिया, मैंने नया ब्लॉक बना दिया। अब उसमें कैसे कोई चूज करे? तो उसमें फिर रैंडमली एक बंदे को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है? एक बंदे को सेलेक्ट किया जाता है, वो अपना ब्लॉक सब में ब्रॉडकास्ट कर देता है, बाकी सबको भिजवा देता है। वो उसके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, उसको उसका हैश नए ब्लॉक के लिए अपने पास सेव कर लेते हैं, और फिर ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है, और अगले ब्लॉक कैलकुलेशन के लिए फिर से लोग माइनिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इन अ होप कि अगला विनर मैं हूंगा और अगले 12.5 या 6.25 बिटकॉइंस मुझे मिलेंगे, और इसी उम्मीद में यह सिलसिला चल रहा है, ठीक है? ये ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क की एग्जांपल्स हैं। यहां पे मैं आपको सिर्फ यहां पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? सो यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम द सेम वेबसाइट। जो मैंने आपको हैश बताया ना, हैशिंग की जो एग्जांपल मैंने जिस वेबसाइट में आपको प्रैक्टिकली करके बताई, वहां पे ब्लॉक्स की रिप्रेजेंटेशन भी है, वहां पे नेटवर्क जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसमें टेम्परिंग किस तरह से ट्रेक होगी, ये सारी वहां पे इंप्लीमेंटेड फॉर्म में ये सारी फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है। यू कैन एंटर योर ओन डेटा एंड यू कैन माइन दोज नंबर्स, ठीक है? अभी चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड वी विल हैव टू, तो मैं उसकी तरफ या चलो देखते हैं, जल्दी से उसको एक नजर देख लेते हैं। इसी वेबसाइट में देखें, आगे आपके पास किस चीज का है, ये ब्लॉक है, ठीक है? एक ब्लॉक में क्या चीजें होंगी, तो ये नॉन्स है, ठीक है? और यहां पे आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं, इसमें सारा ट्रांजैक्शन का डेटा होगा, तो इसमें कोई भी मैसेज आप रख सकते हैं, इसमें आप किसी डिवाइस से जनरेटेड डेटा रख सकते हैं विद टाइम स्टैम्प्स, इसमें आप ट्रांजैक्शंस का डेटा रख सकते हैं, कुछ भी। और हर एक डेटा के लिए लाइक एलिस सेंड्स 10 रुपीज टू बॉब, अब ये एक ट्रांजैक्शन का डेटा है। देखो नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस नहीं मिल रहे, ये कलर चेंज हो गया है जो आपको नजर नहीं आ रहा, एंड इट गेट्स रेड जब इसमें इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ जाए या जो हैश है वो चेंज हो जाए। तो मैं इसको अगर यहां पे माइन करूंगा ना, तो अब ये इस मैसेज के हिसाब से नया नॉन्स डिसाइड करेगा। देखो ये नॉन्स जो है ये थोड़ी देर में अब चेंज हो जाएगा, ये अब प्रोसेसिंग कर रहा है, ये इसके हैशेस कैलकुलेट कर रहा है फॉर डिफरेंट नॉन्स, सो इट विल टेक सम टाइम। और ये इसने एक नया हैश इसका कैलकुलेट कर दिया विद लीडिंग जीरोस। अब देखें ये बड़ी सिंपल एक सिनेरियो है, इसमें बहुत कम डेटा है और इसने उसका हैश कैलकुलेट किया, देखो नॉन्स चेंज हो गया है, ठीक है? विद दिस नंबर जब आप इस डेटा का हैश कैलकुलेट करेंगे इट विल कम विद 4 लीडिंग जीरोस। तो इसका मतलब ये कि दिस ब्लॉक हैज बीन सक्सेसफुली माइंड। अब अगर बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुल कर दिया है तो सब एडवर्टाइज करेंगे, उनमें से एक चूज होगा, वो अपना ब्लॉक फिर बाकियों में शेयर कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो उसको वेरीफाई करेंगे एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन। तो इसमें जो अगली इंप्लीमेंटेशन है वो ब्लॉकचेन की है। एक का रिकॉर्ड एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, और आगे आप चलते जाएं। यहां पे दिस इज कॉल्ड द जेनेसिस ब्लॉक। तो इसमें प्रीवियस, चूंकि इससे कोई है नहीं, दिस इज द स्टार्टिंग ब्लॉक, द जेनेसिस ब्लॉक। तो इसमें प्रीवियस कोई हैश नहीं होता, दैट इज अ जीरो वैल्यू। उसके बाद इसका जो हैश होगा वो यहां पे होगा, ठीक है, इधर पड़ा हुआ है, और इसका जो हैश कैलकुलेट होगा वो इसमें पड़ा होगा, एंड सो ऑन इट गोज ऑन, ठीक है? तो आप यहां पे अपना डेटा डाल के इसको माइन करेंगे, ठीक है? तो ये वैलिड ब्लॉक बन जाएगा। फिर इसमें अगर आप कुछ डेटा डालना चाहते हैं फिर इसको माइन करेंगे, तो अकॉर्डिंगली
यहाँ पे अपडेट होगा, एंड सो ऑन द नेटवर्क विल बी अपडेटेड एज ए होल। ठीक है, अच्छा। फर्दर फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड का भी है, यू कैन गो थ्रू इट एंड लुक ये कैसे जब एक नया ब्लॉक बनता है तो बाकियों के साथ कैसे वो शेयर होता है। तो यहाँ पे अब मल्टीपल पीयर्स या जो नोड्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये कंसिस्टेंसी एक्वायर करेगा। ठीक है, इज अ वेरी यूजफुल वेबसाइट, इसका लिंक वहां पे गिवन भी है। ठीक है, तो आप लोग फिर फर्दर में ये शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, आप वहां से फिर फर्दर इसको देख सकते हैं। बस आखिर में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, दिस इज हाउ द डिफिकल्टी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, तो वो बात तो हमने कर ली है। दिस इज ए ग्राफ ऑफ बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी। ओरिजिनली जब 2009 में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ तो तब आप एक नॉर्मल कंप्यूटर, एक नॉर्मल लैपटॉप से भी लोग माइनिंग करते थे, बिकॉज देयर वाज वेरी माइनर डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन डेट माइनिंग। ओरिजिनली लोग कम थे ना, ठीक है, कोई माइनिंग नहीं कर रहा था, सो देयर वर अ लॉट ऑफ लीडिंग जीरोस और आपको बहुत छोटा सा एक नंबर कैलकुलेट करना पड़ता था। विद दी पैसेज ऑफ टाइम आप देखें ये कंप्लेक्सिटी, ये उसका बार है। ठीक है, तो 2019 तक ये मिलियंस ऑफ हैशेस तक ये कंप्लेक्सिटी पहुंच चुकी है कि अगर आपको नया ब्लॉक माइन करना है, यू हैव टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस, तब जाके आप वैलिड हैश तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये हैश रेट्स हैं इन टेरा हैश आजकल पर सेकेंड्स। टेरा हैशेस कैलकुलेशन के बाद आप जो है वैलिड ब्लॉक गेस कर सकेंगे या वैलिड हैश गेस कर सकेंगे। तो उसके लिए जो हार्डवेयर यूज होता है, ओरिजिनली हम एक नॉर्मल सीपीयू से भी ये काम कर सकते थे, फिर वक्त के साथ साथ लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना शुरू किया बिकॉज दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब उससे भी बात आगे जा चुकी है, अब डेडिकेटेड एसिक्स होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो 2013 से 18 तक फिर इनका एक दौर आया और लोगों ने अब उनके नेटवर्क्स लोगों ने बनाए हुए हैं, डेडिकेटेड एसिक्स के नेटवर्क बने हैं और वो माइनिंग फॉर्म्स के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अब अगर कोई आम बंदा माइनिंग करना चाहेगा तो देयर इज नो चांस कि वो कभी नया ब्लॉक माइन कर सकेगा। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक्स, किस तरह ब्लॉकचेन काम करता है और कैसे ब्लॉक्स बनते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, although there is a lot of things to this field, लेकिन इस एक सेशन में वो सारा कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता। The important thing is why did we discuss it today? Why is it important to you people? तो आप लोगों को क्लियरली आइडिया होगा कि नए फील्ड्स में ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने जा रही है और बहुत सारे फील्ड में इंप्लीमेंट हो चुकी है। New open source frameworks and new technology paradigms are being introduced. Like आप लोगों ने NFTs के बारे में सुना होगा, डिजिटल एसेट्स के बारे में, मेटावर्स के बारे में सुना होगा। कोर टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन। ठीक है, अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, आप इनमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यू शुड नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। सो देयर इज ए हाई डिमांड ऑफ स्किल्ड पीपल nowadays and there is a high potential for research work as well। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लॉकचेन इस वजह से सीखूं, मैंने खुद इस वजह से सीखा कि मेरे पास एमएस के लोग आते हैं और वो रिसर्च आइडियाज और आई वांट टू रिसर्च। तो मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं, मैंने कहीं से हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन इट, मैंने कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन आई गॉट ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और इस तरह से। तो आप लोग भी अगर इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या होगा कि आप अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, और मैं आपको एक छोटा सा रोड में भी बता देता हूं कि क्या करना होगा। सो ये तो खैर नजर तो नहीं आ रहा, बहरहाल आपको बेसिक ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, जब आपको, जो कि आज हमने तकरीबन चीजें डिस्कस कर ली, आगे क्या है,
आपने नेक्स्ट स्टेप इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हो सकता है मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी एक छोटा सा सेशन फिर कंडक्ट कर लूं फ्यूचर में इंशाल्लाह, ठीक है। सो इथीरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, सॉलिडिटी लैंग्वेज है उसकी और स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं इथीरियम के अलावा भी, हाइपरलेजर फैब्रिक और हाइपरलेजर सार्ट। इसमें जो मुझे ज्यादा पसंद है दैट इज हाइपरलेजर फैब्रिक बिकॉज दिस इज इनिशिएटेड और फाउंडेड बाय द लिनक्स फाउंडेशन, ओपन सोर्स है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है इसका, और आप इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गो लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सपोर्टेड, ठीक है। और आप इसको सिर्फ करेंसी के लिए नहीं बल्कि बाकी फील्ड्स में ब्लॉकचेन की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई वुड प्रेफर हाइपरलेजर फैब्रिक, और मैंने काफी सारा कंटेंट इस पे डाउनलोड कर भी लिया है कि मैंने आगे इसको स्टडी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसके साथ फिर इसी का एक और वर्जन है साटुत, जो कि इथीरियम के साथ हाइपरलेजर को कंपेटेबल बनाता है, क्योंकि यू कैन रन इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन साटुत फ्रेमवर्क एज वेल। सो दीज आर जस्ट उन 3 टॉप विच आई कंसिडर टॉप, और ये एक लिंक से मैंने लिए हैं, फर्दर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फूड सप्लाई के लिए अलग से लोग बनाए गए हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए अलग से बनाए गए हैं। मेरे रिसेंट एक MS स्टूडेंट ने इस पे एक रिव्यू पेपर पब्लिश किया था कि क्या यूटिलाइजेशन है ब्लॉकचेन की IoT फ्रेमवर्क्स की इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इन चीजों को एक्सप्लोर करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉलिडिटी, एज ए बिगिनर आपको सॉलिडिटी सीखनी पड़ेगी, और सॉलिडिटी के बेस पे फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स बना सकेंगे, विच अगेन ऑल दीज आर रिलेटेड टू इथीरियम। ये मैं हाइपरलेजर की बात नहीं कर रहा, बट वंस यू लर्न वन द अदर्स बिकम इजी, ठीक है। आजकल क्योंकि ये काफी अब पुराना हो चुका है, इसके काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन यूट्यूब पे आपको हर चीज के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आसानी से। तो वंस यू आर डन विद दैट, फिर आप फर्दर फ्रेमवर्क्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डीप डाइव इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। सो आई होप यू हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।